Today we will start chapter number 6, electromagnetic induction. So this chapter we also studied in class 10th also. There is a topic electromagnetic induction, lactate generator topic. So what is the meaning of electromagnetic induction? So we will discuss it with a diagram. What is electromagnetic induction? First I will give the definition. What is electromagnetic induction? The electromagnetic induction means the production of induced EMF in a closed coil due to changing magnetic field is called electromagnetic induction, or due to that induced EMF. Induced EMF means electromotive force, means there is a potential difference between the two ends of the coil, and due to which the current start flowing. So that is known as electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? For example, we will take, this is a coil, it is connected with a galvanometer. Clear? So now if we will change the magnetic field, for example, if we take a bar magnet here like this is north pole and that is south pole. So when we move a bar magnet near that closed coil, we will see that there is a deflection in the galvanometer. So this deflection indicates that the current is flowing in that circuit. So means if current is flowing means there is a potential difference between the two end of the coil, कि इस coil के किन्हीं भी दो end के बीच में potential difference create हो गया, उसी की वजह से इसमें current flow होना शुरू हो गया. तो what is electromagnetic induction? Production of induced EMF due to changing magnetic field. Production of induced EMF in a closed coil, in a closed circuit. We can write here. Here we'll write production of induced EMF in a closed circuit due to changing magnetic field. And due to this induced EMF, due to this induced EMF, the current start flowing through the circuit. So how? When we move a bar magnet near to it, the magnetic field increases, or when we move it away from it, then magnetic flux decreases or magnetic field decreases. Clear? Due to increase and decrease magnetic field, so one end is at the high potential, another end is at the low potential. So the end which is at the high potential and the end which is at the low potential, due to these potential difference, the current start flowing through this coil. So इस induced EMF की वजह से इस coil के अंदर current flow होगा, उसको हम बोलेंगे electromagnetic induction. Or in the next we will write here, in place of magnetic field we will write due to changing magnetic flux. क्लियर? तो नेक्स्ट जब हम चैप्टर में जाएंगे तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं. अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वी हैव आल्सो डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? So what is magnetic flux? So magnetic flux for a surface is defined as number of magnetic field line passes through it. So जैसे ही ये कोई बार मैग्नेट है तो आपको पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी लाइक दिस. क्लियर? तो जैसे ही ये इस कोयल की तरफ जाएगा बार मैग्नेट, तो इस कोयल के अंदर, इस लूप के अंदर या इस क्लोज सर्किट के अंदर जो फील्ड लाइन है वो बढ़ेगी. इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो गया. और जब इससे दूर जाएगा तो फील्ड लाइन कम इसमें से पास होगी तो फ्लक्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. सो व्हाट इज फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? Magnetic flux for a surface is defined as number of magnetic field line passes through that surface. And we also written in the previous chapter 5b, this is the magnetic flux. It is the dot product of magnetic field and area of cross section. So flux is equal to BA cos theta. Clear? If we take theta 0 degree, then we know that cos 0 is 1. If we take theta is equal to 90 degree, so अगर हम theta को 90 डिग्री लेंगे,
क्लियर। तो तब आपका अगर फील्ड आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 आपका हो जाएगा 0। सो एवरी टाइम यू विल टेक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो योर फ्लक्स BA इज इक्वल टू BA। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसको, ये आपका फ्लक्स था, अब इस फ्लक्स से हम एक पॉइंट और निकाल लेंगे यहाँ पे, फ्लक्स डेंसिटी या इंड्यूस फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तीनों चीजें एक हैं बेटा। अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं तो फाई B इज इक्वल टू दैट इज BA। तो अगर मैं यहां से B निकालना चाहता हूं दैट इज फाई डिवाइड बाय A। क्लियर। सो दिस B कैन बी डिफाइंड इन 3 ways। इट इज आल्सो रिटन एज अ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी होता है that is flux per unit area, that is flux density. It is also can be stated as field strength, magnetic field strength. It is also can be stated as induced magnetic field. तो इसको तीन तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला इसको बोल सकते हैं आपका फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसको फिर फ्लक्स डेंसिटी के बाद इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। जो फ्लक्स था आपका हम लिखा था B फाई B इज इक्वल टू BA कोस थीटा। बेटा यहाँ पे BA कोस थीटा चलेगा बिकॉज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसका। क्लियर। आल्सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मान लो ये कोई सरफेस है आपका। क्लियर। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B, ये B की डायरेक्शन थी। सो वी रिजोल्व इट इन द 2 कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट आ गया आपका, एक ये कंपोनेंट आ गया। क्लियर। सो अगर हम कह देते हैं कि आपका अगर ये आपने किसको रिजोल्व किया, आप इसने रिजोल्व किया, हमने कह दिया कि विल ड्रॉ अ एरिया वेक्टर। हमने क्या ड्रॉ, जैसे सरफेस वेक्टर था हमने सरफेस वेक्टर ड्रॉ कर दिया, विल ड्रॉ अ सरफेस वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। व्हाट इज सरफेस वेक्टर? अ वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो वी ड्रॉ अ सरफेस वेक्टर लाइक दिस की व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। क्लियर। एंड इट मेक एन एंगल थीटा विद B। Clear. So if we resolve it, it will become B sin theta and it will become B cos theta. Clear. So from here the flux comes out to be that is BA cos theta. Clear. Due to that BA cos theta. Now if we see here, at that case the area vector is along the B cos theta. So means angle between the area vector and the B is 0. So that's why here comes out to be cos 0 and cos 0 is equal to 1. Clear. If we taken this component, so at that time if we find it कि it is along the surface, कि ये along the surface है, तो वहां पे एंगल क्या हो जाएगा? 0 आएगा। फिर भी आपका ये फ्लक्स कैन आल्सो बी रिटन एज BA cos theta, but in place of that B we will write here B sin theta। बिकॉज जो आपका B था उसकी 2 वैल्यू बनेगी बेटा। अगर मैं निकालता हूँ, एक अलोंग निकालता हूँ, एक परपेंडिकुलर निकालता हूँ। अब जो अलोंग वाला था आपका, ये वाला था जो ये, इसके अंदर लिखा B की जगह एक्चुअली फाई इज इक्वल टू BA था। क्लियर। BA कोस थीटा। क्लियर। तो फाई आपका था BA कोस थीटा बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड एरिया। सो इफ वी टेक दिस वैल्यू BA साइन थीटा, क्या लिखते हैं अगर हम यहाँ पे इस B की जगह आपका अगर B साइन थीटा A इंटू में कोस थीटा। अब हम इस कंपोनेंट को देखते हैं। क्लियर। अब ये कंपोनेंट आपका अलोंग द सरफेस है और जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। और यहाँ पे जब मैं कोस की वैल्यू को 90 पुट करूंगा तो आपका जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन जब इसके अंदर हम देखते हैं, जब हम लिखा था फाई इज इक्वल टू B कोस थीटा इंटू में A कोस थीटा। क्लियर। अब इस केस में जब हम कोस की वैल्यू लिखते हैं कि जो ये BA कोस थीटा है और जो ये एरिया वेक्टर है आपका दैट इज इन अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो एट दैट टाइम योर एंगल इज 0 एंड कोस 0 इज 1। सो दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस कंपोनेंट। सो योर फाई इज इक्वल टू BA कोस थीटा। क्लियर। वी विल टेक द नॉर्मल। हमने उस कंपोनेंट को लेना है जो नॉर्मल है। मींस जब आपका फील्ड किसी भी सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए और सरफेस वेक्टर के अलोंग, मींस अलोंग द सरफेस वेक्टर होगा, अलोंग द सरफेस वेक्टर।
कि सरफेस वेक्टर के अलोंग होना चाहिए और सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे बताते हैं आपको, मान लो ये आपका कोई सरफेस है, तो अगर फील्ड इसके ऐसे होगा, क्लियर, और अगर एक फील्ड आपका है तो फील्ड आपका ऐसे होना चाहिए, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर इसका मैं ड्रॉ कर देता हूं सरफेस वेक्टर, दैट इज सरफेस यूनिट वेक्टर, अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो इसके होना चाहिए अलोंग। तो सिंपल सी बात समझनी है कि बी जब आपका किसी भी सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, तब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। दूसरा पॉइंट कि अगर आपका बी अलोंग द सरफेस वेक्टर है तब भी आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आपका बी अलोंग द सरफेस है और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेक्टर, तब आपका जो फ्लक्स है वो आपका मिनिमम होगा। तो अब इसके बाद हम एक पॉइंट और समझते हैं, क्या है यहां पे कि दैट फ्लक्स इज रिटन एज बी बाय ए, सॉरी बी ए cos we will take on 0, that cos 0 1. So from here we will find the b. So b comes out to be 5 by 8. अब इस b को हमने तीन तरह से बता सकते हैं। that b can be written as flux density, that can be also written as field strength, and that b can also be written as induced magnetic field। तो इसको हम तीन तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं b को, है तीनों सेम ही। अब इसकी अगर हम देखते हैं तो इसकी यूनिट होती है वेबर, क्लियर, उसकी मीटर। तो दिस यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ बी, वेबर पर मीटर, जिसको हम बाद में टेस्ला भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये बी की यूनिट ही है तो इसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं। तो ये आपका था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे होता है, कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैक्सिमम कब होगा कि जब आपका फील्ड किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर है या फिर आपका फील्ड किसी भी सरफेस के सरफेस वेक्टर के अलोंग है। मिनिमम कब होगा कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस के अलोंग हो और उस सरफेस के सरफेस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो फील्ड आपका मिनिमम होगा। इसके बाद हम देखेंगे फ्राडे के एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे बेटा जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम किया वो फ्राडे थे। अब फ्राडे ने क्या किया था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उसने कंक्लूजन निकाली जिसको हम फ्राडे लॉ के नाम से जानेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया उसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फ्राडे एक्सपेरिमेंट। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है ये, जिन्होंने 10th में अच्छे से देखा था उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फ्राडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्राडे टुक आ closed coil, clear, and connected with the galvanometer, clear. Now took a bar magnet north and south pole near to that coil. अब जो आपकी बार मैग्नेट है इसके होता है फील्ड अराउंड दैट बार मैग्नेट, क्लियर। तो एज फ्राडे मूव दैट मैग्नेट नियर दिस कॉइल, उसने देखा कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। इसका मतलब ये है कि इस बार मैग्नेट के मोशन की वजह से इसमें करंट आया। करंट तभी फ्लो होता है जब किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर होगी इंड्यूस ईएमएफ। अब जैसे ही इस मैग्नेट को वो स्टॉप कर देता था तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन खत्म हो जाती थी। अगर इसको वो पूरा फास्टली मूव करवाता था तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज्यादा आती थी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल ली कि ड्यू टू दैट बार मैग्नेट द फील्ड ऑन दैट कोयल चेंजेस। अब फील्ड को हम बोलेंगे फ्लक्स, कि जब इस बार मैग्नेट को इसके हम पास लेके जाते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज करता है और जब दूर लेके जाते हैं तो फ्लक्स डिक्रीज करता है। अब हमने फील्ड की जगह बोलना है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों, जब इसकी क्लोज आएगी तो ज्यादा फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट करेगी, जब इससे दूर जाएगी तो कम फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट करेगी। तो जैसे इसके ऊपर फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पे आते हैं डिफ्लेक्शन। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स देयर इज अ इंड्यूस ईएमएफ, क्लियर। यहाँ पे क्या हुई, इंड्यूस ईएमएफ। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट स्टार्ट हो गया फ्लो होना। उस करंट की वजह से इस गैल्वेनोमीटर ने दी डिफ्लेक्शन, और जब तक इसका मोशन ज्यादा था तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। मोशन का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर हम यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आती है। अगर यहाँ पे थोड़ा वीक मैग्नेट लेते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या आती है, कम आती है। क्लियर। और जब इसको फास्टली मूव करवाते हैं तो तब भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा आती है। मीन्स इस मैग्नेट के मोशन की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, और जब इसका मोशन करवा रहे थे तो इस कॉइल के ऊपर इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, और उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से यहां पे इंड्यूस ईएमएफ हुई। ये था पहला एक्सपेरिमेंट। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया एक दूसरी कॉइल से। दूसरी कॉइल का यहां पे ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे एक बैटरी ली, एक की ली, और इसमें से पास करवा दिया एक सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर। जैसे इसको हमने ऑन किया तो ये भी क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। अब इसका जो फ्लक्स था इसके ऊपर आ रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। अब जब इसको हमने मूव करवाया तब भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिली। अब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, ये कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो डिपेंड करता नंबर ऑफ टर्न पे, करंट पे। क्लियर। तो जब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न बढ़ाई तो यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या आई, ज्यादा आई। क्लियर। तो सिर्फ वही बात है कि इसको जो यहाँ पे बार मैग्नेट था उसको रिप्लेस कर दिया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था, उस तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन प्लेस ऑफ मूविंग कॉइल उन्होंने यहां पे ले ली एक स्टेशनरी कॉइल। क्या ले ली यहां पे, स्टेशनरी कॉइल। अब जैसे स्टेशनरी कॉइल को एक बार ऑन किया तो यहां पे डिफ्लेक्शन आई, लेकिन उसके बाद डिफ्लेक्शन नहीं आई। इसका रीजन क्या था कि जब इसमें से करंट फ्लो हुआ इसका फील्ड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन एक बार फील्ड बढ़ के मैक्सिमम हो गया। मतलब एक बार इसके ऊपर फील्ड लाइन आना शुरू हो गई लाइक दिस, कि यहां तक इसकी फील्ड लाइन चली गई। अब इसके बाद जो इसमें करंट था वो अगर कांस्टेंट फ्लो हुआ, कांस्टेंट करंट मतलब क्या कि करंट की वैल्यू फिक्स थी, तो फील्ड लाइन यहां तक पहुंच गई। उसके बाद ना फील्ड लाइन कम हो रही, ना फील्ड लाइन क्या हो रही, ज्यादा हो रही। तो इसके बाद यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, नो डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ तभी होगी अगर वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर इस करंट को हमने क्या कर दिया, वेरी कर दिया, वी विल वेरिएबल करंट ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या, कभी करंट को कम, कभी करंट को ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो जब करंट ज्यादा हुआ तो फील्ड भी ज्यादा हुआ, जब करंट कम हुआ तो फील्ड भी कम हुआ। तो जब फील्ड कम है तो इसका मतलब फ्लक्स इसके ऊपर कम, और जब फील्ड ज्यादा तो इसके ऊपर फ्लक्स ज्यादा। क्लियर। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकली, क्या कंक्लूजन निकली कि जब भी किसी भी क्लोज कॉइल के पास आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, वो किसी बार मैग्नेट का फील्ड हो, वो किसी करंट कैरिंग कॉइल का फील्ड क्यों ना हो, तो आपकी जो गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। और अगर किसी के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उसके दो एंड के बीच में कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। सो दीज आर द 3 एक्सपेरिमेंट in your book which is mentioned about the electromagnetic induction performed by the Faraday and the Henry. So next we will discuss about the Faraday law of electromagnetic induction. अब जो फ्राडे का फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ वही है जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हम, अगर किसी भी क्लोज कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वहां पे होगी इंड्यूस ईएमएफ। सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, कि इफ अ क्लोज कॉइल इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, a induced EMF is produced. So the first law of Faraday stated that whenever a magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced, कि जब किसी भी क्लोज कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, मीन्स अगर किसी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। यही फ्राडे का पहला लॉ था। तो व्हाट इज फ्राडे फर्स्ट लॉ व्हिच वी हैव डिस्कस, कि इफ द फ्लक्स लिंक विद द क्लोज कॉइल चेंजेस, इफ फ्लक्स, अब ये फ्लक्स कौन सा है बेटा, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स
linked with a closed coil or circuit, closed coil changes. Clear? If the flux linked with a closed coil changes, due to that an EMF is induced in that coil. बात वही है क्या, ये क्लोज कॉइल है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जब इस मैग्नेट को हम मूव करवाएंगे तो इसके ऊपर जो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है या इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे होगी इंड्यूस ईएमएफ, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें फ्लो होगा करंट। यही फ्राडे का पहला लॉ है। व्हाट इज फ्राडे फर्स्ट लॉ? कि व्हेनेवर अ फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज कॉइल, व्हेनेवर अ फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज कॉइल, अब इस मैग्नेट का फ्लक्स इससे लिंक है। क्लियर? तो जब इस मैग्नेट का हम मूव करवाएंगे तो इसके ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो चेंज कर रही है, तो उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से यहाँ पे होगी इंड्यूस ईएमएफ, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर फ्लो होगा करंट। तो व्हाट इज फ्राडे फर्स्ट लॉ? whenever the flux link with a closed coil changes, due to that a induced EMF is produced, or an EMF is induced in that coil, which is known as Faraday's first law of electromagnetic induction. Whenever magnetic flux link with a closed coil changes, an EMF is induced. कि जब किसी भी क्लोज कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी या ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। तो ये था फ्राडे का पहला लॉ। नाउ विल डिस्कस सेकंड लॉ ऑफ फ्राडे। अब जो दूसरा फ्राडे लॉ है वो है ईएमएफ के लिए। हमने बोल दिया इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो गई, तो जो इंड्यूस हुई ईएमएफ है वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो कहाँ से निकला, वो निकला फ्राडे के सेकंड लॉ से। अब फ्राडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux link with that coil or with that loop। कैसे, इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ कि ये कोई कॉइल है, क्लियर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, क्लियर, और ये आपकी कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हमने क्या कहा कि जब टाइम t1 था, क्लियर, तो इस कॉइल के ऊपर जो फ्लक्स था वो φ1 था। इस मैग्नेट को मैंने आगे की तरफ मूव करा दिया, कब, जब टाइम क्या था, t2 था, क्लियर, और जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी φ2। तो जो सेकंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, सो इफ E is the EMF and it represented by E, that is directly proportional to the rate of change of flux link with that coil, कि टाइम के साथ कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो दैट इज कैलकुलेटेड φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, क्लियर। सो दैट E मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे चेंज को हम लिखते हैं जैसे चेंज इन वेलोसिटी दैट dv बाय dt और dx बाय dt, तो हम चेंज को यहाँ पे लिख सकते हैं d phi बाय dt। अब ये d phi बाय dt क्या है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्लियर। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू के, और के किसके इक्वल है, मान लो 1 के इक्वल है, तो इंड्यूस ईएमएफ कैन बी रिटन एज डी फाई बाई डी टी, और इफ इन योर coil there are the n number of term, so that induced EMF, so magnitude of that induced EMF is considered n into d phi by dt, and this d phi by dt is known as a rate of change of
मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सेकंड लॉ आपको बताता है कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स पहले की तरह था φ1 था, बाद में φ2 हो गया, टाइम पहले t1 था, t2 हो गया, तो जो चेंज हुआ वो आ गया φ2 माइनस φ1, t2 माइनस t1। अब इस चेंज इन फ्लक्स को हम लिख सकते हैं d phi by dt। So E comes out to be d phi by dt, and if there are n number of terms, then this E can be written as n into में d phi by dt. So this is your second law of Faraday. Then next we will discuss the Lenz law. अब Lenz law आपका क्या है, ये EMF के बारे में है। व्हाट इज Lenz law? तो पहले Lenz law को डिफाइन करते हैं, क्या है Lenz law? The Lenz law state that the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produce it। कि जो इंड्यूस EMF है जिसकी वजह से किसी कॉइल में ये प्रोड्यूस हुई है, ये उसी को अपोज करती है। अब इसका मतलब ये बेटा कि जो हमने इंड्यूस EMF लिखी, दैट इज E इज इक्वल टू n इंटू में d phi by dt। सो हियर कम्स आउट टू बी माइनस। यही आपका लेंज लॉ है। अब इस लेंज लॉ को अगर हम समझते हैं तो क्या है लेंज लॉ? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF सच दैट, कि जो इंड्यूस EMF की पोलैरिटी होगी वो ऐसी होगी, कैसी होगी कि ये उसको अपोज करेगी जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। ये किसको अपोज करेगी? उसको अपोज करेगी जिसने इसको, मतलब जिसकी वजह से इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस EMF उसी को अपोज करती है। क्लियर? तो ये आपका है लेंज लॉ। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब सुनते रहना ध्यान से। क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये है कोई क्लोज कॉइल, क्लियर, और ये आपका है यहाँ पे साउथ पोल और ये आपका है नॉर्थ पोल। अब मैंने क्या कहा कि दैट मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड कॉइल। तो जैसे जैसे मैग्नेट इसकी तरफ जाएगी तो जो आपका फ्लक्स है वो करेगा इंक्रीज। लेकिन ये कॉइल खुद चाहती है कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो। इसका मतलब कि अपनी ही पोलैरिटी को, जो पोलैरिटी है जो जिसकी वजह से EMF प्रोड्यूस हो रही है उसी को अपोज कर रही है वो। तभी हमने बोला द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इज सच दैट, कि जो इंड्यूस EMF की पोलैरिटी ऐसे होगी, क्या इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, मतलब जो इंड्यूस EMF को, जिसकी वजह से इंड्यूस EMF किसी क्लोज कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है उसी को वो अपोज करेगी। अब ये कोई कॉइल थी, ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो कॉइल है बेटा, ये खुद क्या करती है, इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहती है, मतलब अपोज करती है। अब वो कब होगा? ये एंड इसकी तरफ आ रहा है, ये एंड इसकी तरफ कब नहीं आएगा, या कब आना रुक जाएगा, या कब आना कम होगा? जब यहाँ पे आएगी नॉर्थ पोलैरिटी, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या आ गया? रिपल्शन आ गई। क्लियर? और यहाँ पे जो आपका करंट हो जाएगा वो एंटी क्लॉक हो जाएगा बेटा। क्लियर? अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से क्या था, यहीं पे ले लेते हैं। अब इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को इससे दूर लेके जा रहे हैं। तो अगर हम क्या देख रहे हैं, अब जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगी तो फ्लक्स आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन ये कॉइल चाहते हैं कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो। मींस क्या कि जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो कॉइल चाहती थी फ्लक्स कम हो, अब फ्लक्स कम हो रहा है तो कॉइल चाहती है फ्लक्स क्या हो? इंक्रीज हो। तो उसके लिए क्या होगा? तब बेटा यहाँ पे जो पोलैरिटी आएगी वो आ जाएगी साउथ, बिकॉज ये नॉर्थ और साउथ में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। इस अपोजिट पोल की वजह से ये कॉइल से दूर, ये कॉइल से दूर हो जाएगी। कॉइल चाहती है कि इससे दूर ना जाए, और जो यहाँ पे करंट आपका होगा दैट विल बिकम क्लॉकवाइज। तो ये था लेंज लॉ बेटा। अब लेंज लॉ ये क्या है कि जो इंड्यूस EMF है, द पोलैरिटी ऑफ जो इंड्यूस EMF है, कि जो इंड्यूस EMF की वजह से जो पोल बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि जिसकी वजह से इंड्यूस EMF इंड्यूस हो रही है वो उसको अपोज करेंगे। और यही आपका है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ ये दोबारा बता देते हैं क्या है। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इज सच दैट, कि जो इंड्यूस EMF की पोलैरिटी ऐसे होगी, कैसे होगी कि इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, कि जिसकी वजह से इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस EMF उसी को अपोज करेगी। तभी बेटा यहाँ पे जो साइन आया वो माइनस का आ गया, E इज इक्वल टू माइनस dN बाई dt। अब ये है लेंज लॉ। और इससे ना फ्राइडे का दूसरा लॉ था E इज इक्वल टू n d phi बाई dt, कि इंड्यूस EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? अब इस एग्जांपल से हमने समझा है कि जब इसको इसके पास लेके जा रही हैं तो ये कॉइल चाहती है फ्लक्स बढ़े ना, तो फ्लक्स बढ़ेगा कब? नहीं, जब यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि ये इसकी तरफ मूव कर रहा है।
और जब इसे दूर लेके जाएंगे तो कोयल चाहती है कि फ्लक्स कम ना हो, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, साउथ पोल आएगा। तो बेटा ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब कोयल पे फ्लक्स बढ़ता है तो वो चाहती है कि फ्लक्स ना बढ़े, तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, उसके लिए उसको मैग्नेट का वही पोल इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से दोनों पोल में क्या होगी, रिपल्शन होगी। और दूसरी तरफ अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेट दूर जा रही है, तो कोयल खुद चाहती है कि फ्लक्स डिक्रीज ना करे। अगर फ्लक्स डिक्रीज नहीं करना है तो इसकी वजह से जो कोयल के ऊपर पोलैरिटी आएगी, तो जिस पोल को वो फेस कर रही है उसके अपोजिट पोल उसके ऊपर अपीयर होगा। जैसे अब ये इससे दूर जा रहा था, जब ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कोयल क्या चाहती है, फ्लक्स डिक्रीज ना हो। तो फ्लक्स डिक्रीज ना हो उसके लिए ये इससे दूर न जाए, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ था तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, साउथ, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगी, तो उस अट्रैक्शन की वजह से ये मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगी। लेकिन जब इसको हम इधर लेके आ रहे थे तो फ्लक्स बढ़ रहा था, क्योंकि मैग्नेट क्लोज आ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन कोयल खुद चाहते हैं फ्लक्स ना बढ़े, तो इसके लिए यहाँ पे आया नॉर्थ पोल, बिकॉज नॉर्थ टू नॉर्थ में रिपल्शन होगी और ये कोयल या ये मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, और यही आपका है लेंज लॉ। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के कल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, जिसके अंदर हमने इंड्यूस ईएमएफ जो होगी किस किस पे डिपेंड करती है, मोशनल ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ना है। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे।